Okay, today's topic is nutrition in plants, standard 7, chapter number 1. Okay, first of all, you know that about the living organism and non-living organism. Living organism, what is mean by living organism? Like human beings, plants, animals, you know that very well. Need food. उनके लिए उनको survive करने के लिए, exist करने के लिए food की जरूरत होती है. उनको living organism कहते हैं. And opposite of that is non-living organism, like stone. It does not need food to survive and exist. Then cells. Second important definition is cells. What is mean by cell? Cell that tiny units that helps make up a living organism. Means हमारी पूरी body cell से ही बनी हुई है. Hence they are called as the building blocks of an organism. एक tiny units होता है हमारे body में, उससे ही हमारे multicellular cells होते हैं, बहुत सारे cells होते हैं, उससे ही हमारी body बनी होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? building blocks of an organism. And this is a picture of cells. Okay, but there are two types of cells. First is singular cell, that is also called as a single cell, and second is a multicellular cell. What is mean by single cells and singular cells? आपको पता है cells क्या होता है, but there are two types of cell. First is single cell. Single cells means the single cells, the organism that are made up of just only a single cell. एक ही cell से बना हुआ होता है. यहाँ तो आपने multicellular cells देखे, but कुछ ऑर्गेनिज्म होता है कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं. मीन्स उनका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ऑल दैट एक्टिविटीज आर ओनली टेकिंग ओनली वन सेल्स. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज अमीबा. अमीबा क्या करता है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कुछ there are multiple activities done only one cells. And another example of single cell is paramecium, and that was about a single cell. Then second is multicellular cell. Multicellular cells means what? The organism, that simple definition है that more than one cells are called as a multicellular cell. Single cells that have just only one cells, and multicellular cells means organism more than one cells are called as a multicellular cells. Examples, human, plants are the most common examples of multicellular cells. Means excretion, digestions, respirations are all these activities have a different taken in different types of cells. But in amoeba, that is only one cells that एक ही सेल में सब एक्टिविटीज होती है. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अमीबा एंड मल्टीसेलुलर सेल इज ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज न्यूट्रिशन. हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन? क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन क्या? मोड ऑफ टेकिंग फूड लेना, बट एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी. ओनली टेकिंग ऑफ फूड इट्स नॉट अ न्यूट्रिशन, बट यूटिलाइजेशन होना चाहिए बॉडी में. किसके? why it is necessary for growing, प्रोवाइड एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, एंड हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स और ऑर्गन्स. जो डैमेज पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनके रिपेयर के लिए हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन? इट्स अ मोड ऑफ टेकिंग फूड. हम फूड जो लेते हैं एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी. ओके, देन ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स दो टाइप्स के होते हैं. ऑटोट्रॉप्स मीन्स व्हाट? ऑर्गेनिज्म दैट मेड फूड देमसेल्फ. जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. एंड दैट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स इज प्लांट्स. प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड हेटरोट्रॉप्स, आई विल नॉट राइट हियर, बट हेटरोट्रॉप्स भी होता है that organism do not make their own food, they depends on another animals. The best example is human beings, animals that depends on their food for plants. Hence the autotrophs, auto means self, trophs means make their own food. And plants कैसे बनाते हैं खुद का फूड? फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स food means what is photos is the process of synthesis of food by green plants. कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं. Then what is meant by photosynthesis? Photosynthesis is process. पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है. प्लांट्स में कहाँ होती है? लिव्स में होती है. लिव्स में होती है. लिव्स में क्या होता है? लिव्स ग्रीन कलर का क्यों होता है? लिव्स क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लिव्स में, और उससे वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है प्लांट.
प्लांट की लीफ ग्रीन कलर की होती है। कैसे होती है? जो क्लोरोफिल होता है, जो अंदर होता है प्लांट्स के अंदर, वो क्या करता है? क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर मेकिंग ऑफ फूड। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल, व्हाट इज मीन बाय क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, और वो प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्सॉर्ब ग्रीन वेव लेंथ फ्रॉम द सन, सन से क्या कहता है? ग्रीन वेव लेता है, एंड मेकिंग प्लांट्स लुक ग्रीन, उससे ही प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है? ये सब प्रोसेस लीफ में होती है। मेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, पर ये कहाँ होती है? लीव्स में होती है। लाइट एनर्जी टेक इट, carbon dioxide take it from in the leaves, but through the process of stomata. What is mean through the stomata? But what is mean by stomata? Stomata क्या होता है कि जो leaves के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स मीन्स होल्स होते हैं, उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है लीव्स में, और ऑक्सीजन बाहर आता है। देन लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेते हैं, देन वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं। ये सब प्रोसेस क्या होते हैं? वाटर, CO2 एंड सनलाइट कंबाइन इन द लीफ टू मेक शुगर। इस लीव्स में क्या होता है? थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा मैंने बोला था, CO2 एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ओपनिंग इन द लीफ एपिडर्मिस। जो लीफ की एपिडर्मिस में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। उससे ही क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो फ्रॉम सॉइल से आता है, एंड CO2 अंदर आता है, और ये क्या होते हैं? तीनों कंबाइन होते ही क्या बनते हैं? फूड बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन बाहर जाता है, ऑक्सीजन टेकन आउट, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज most important for the preparation of photosynthesis for making of food, and water is also essential. but जो water vapor होता है, exist होता है बाहर, पोर्स से, स्टोमेटा से बाहर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि वाटर लॉस फ्रॉम द स्टोमेटा, फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, कहाँ से? फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपीरेशन। वाटर लॉस होता है लीव से, उसको ही ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और एक है ट्रांसलोकेशन। जो फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द plants, it's called as a translocation. What is called as a translocation? जो फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। एंड ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लॉस, वाटर लॉस होता है थ्रू लीव्स से, फ्रॉम स्टोमेटा, एंड द whole process is called as a photosynthesis. What is the photosynthesis? Taking of food, taking of water, carbon dioxide and sunlight from through stomata in the leaves, and taking out oxygen and water vapor. जो water vapor जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। एंड फूड ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। दैट ऑल्सो टू डेफिनेशन इज मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट important for the process of photosynthesis. Transpiration, translocation, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो क्या करता है? एब्सॉर्ब लाइट करता है, ग्रीन लाइट करता है, ग्रीन लेंथ करता है, उससे ही क्या होता है? लीफ क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है। ओनली ये याद रखना कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द लीफ, एंड दे फॉर्म अ फूड, and taken out oxygen and water vapor. and water vapor जो लॉस होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एंड जो फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम लीफ टू अनदर पार्ट ऑफ द plant is called as a translocation. This is the process, whole process is called as a photosynthesis process, preparation of food. Then हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट द symbiotic relationship. क्या होता है symbiotic relationship? क्या होता है? Organism that live together and share their shelter and nutrient are called as symbiotic relationship. रिलेशनशिप ऐसा कि दोनों को फायदा हो, उसको ही कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अनदर रिलेशनशिप भी देखेंगे लाइक पैरासाइट, तो अनदर स्लाइड में देखेंगे। पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कि
शेयर करते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर करते हैं, न्यूट्रिएंट भी शेयर करते हैं, आर कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इन रूट्स एंड ऑफ ट्रीज, कि कुछ फंगी होता है, फंगाई होता है कि कहाँ रहते हैं, ट्रीज रूट्स में रहते हैं। और रूट्स में रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो तकलीफ देते हैं क्या रूट्स प्लांट्स को, नहीं, तो वो क्या करते हैं एंड इन वो उसको प्रोवाइड मिलता है न्यूट्रिशन, उनको शेल्टर मिलता है, कहाँ रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स। बट इन रिटर्न ऑफ दैट वो क्या देते हैं प्लांट्स को, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वाटर देते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करता है from the soils and gives to the plants. That was the most common example of this symbiotic relationship is rhizobium. What is a rhizobium? Rhizobium is a type of bacteria live at the leguminous plant, and this is the leguminous plant. And leguminous plant के ऊपर roots में वो क्या रहते हैं, roots के अंदर रहते हैं। This is the picture of this leguminous plant. वो क्या करता है, it's नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ट्रीज को। ये क्या करे, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते प्लांट्स, तो ये राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इट हैज द एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो लेता है और कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल फॉर्म, सोल्यूबल फॉर्म में कि वो कन्वर्ट करता है। वो यूज़ कहाँ होता है, वो प्लांट यूज़ करते हैं। तो this process of bacteria having ability to take it atmospheric nitrogen and convert it to a soluble form, it's called as a nitrogen fixation. इसको ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। The bacteria live in the roots of leguminous plants. ये बैक्टीरिया कहाँ लेता है, roots of leguminous plants. leguminous plant का ही ये क्या है, leguminous plant है ये। and इस रिलेशनशिप से क्या होता है, दोनों की ही फायदा होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज राइजोबियम बैक्टीरिया।